So this is our first experiment. Write an assembly language program for addition of the two 8-bit or 16-bit numbers, and this is the procedure. So this procedure is available on the virtual lab that I have already told you. So you have to install this, write the program code in the editor file window, store the some input data at specified memory array, click on the option assemble for simulation, write the starting address of the program to simulate options, simulate the entire code could be run at the time step by step, execution results can be checked through the registers, memory and device environment window, note down updated registers and memory content value for the verification of results, for instruction mnemonic details click on the help option. So this you can follow. So this is the program. Here what I have done or what virtual lab is given, the origin will be here. Origin org means from this address our programming will start. So LXI at 750H get the address of first number in the HL pair, move a comma m. So content of memory is moved to accumulator INXH. So we need two numbers. So first number one is at 7501H, whereas the second number in one is at 7502H. So add m. So content of m will be added to the content of the accumulator. So first number is in A, second number is in the memory. So we will get addition. Then INXH means the storing of the results. So at the 7503 we need to store. So RST1, either you use RST1 or this is the reset1 command, or you can use HLT command, that is halt command. Okay, and org means 7501H. From this we will store this database 1, 2 and 1, 3. So we'll get at output as 12 plus 13 is 25H. Okay, so 7503H and 25H. So this is the code that we have to run in the Microsoft compiler. This is the first program, and we will go for next one. So see here you will get such type of addresses, because our starting point is 700H. LXI is the 3 byte instruction. I will explain you. 3 byte का इंस्ट्रक्शन है ये, इसलिए देखो 3 मेमोरी लोकेशन लगे. ये है इसका ऑप कोड, हेक्स कोड यानी ऑप कोड. कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है वो भी लिखा है, और मशीन साइकिल्स कितने लग रहे हैं वो भी लिखा है, और टी स्टेट्स कितने हैं वो भी है यहाँ पे. देन ये है इसका ऑप कोड, ये है 01 लोअर बाइट, और 7501 पे हमारा डेटा स्टोर था, तो वो यहाँ पे ले लिया उसने प्रोग्राम में. मूव ए कॉमा एम का ऑप कोड ये है, या हेक्स कोड 7 ही है. वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज वी हैव द लिस्ट ऑफ द हेक्स कोड. So what is the difference between hex code and this mnemonic instruction? See, this move a comma m we can understand, but 8085 is unable to understand. So 8085 only understand the language of 0 and 1, and especially hexadecimal number system is very easy to convert from hexadecimal to the binary. That's why here hex codes are used or opcodes are used. Opcode means operational codes. Okay. So, and this is the reset. So in place of reset we can use the halt instruction, that is the 76 is the hex code of the halt instruction. Okay, so you will get such type of program after assembling, and you have to run this all the time. Okay, you have to run this all the time, and you can select the starting point also. Okay, so this is the another program, that is the addition of the 16-bit. So in the 16-bit addition you will get such type of programming where we need two numbers of 16 bits. That's why the first number is in the D memory pair and the second number is in the HL memory pair. ये देखो, ये पहला नंबर HL में डाला है, दूसरा नंबर DE में डाला है. और फिर ये काउंटर है, दैट इज द MVI C,00, बिकॉज अगर कैरी जनरेट हो गया तो हमें क्या करना है, हमें स्टोर कर देना है रिजल्ट, बिकॉज 16 बिट का एडिशन 16 बिट से ऊपर जा सकता है, और
8 बिट का एडिशन है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 16 बिट का एडिशन करना है तो कैरी जनरेट होगा, और अगर कैरी जनरेट हो गया तो हमें इंक्रीमेंट करना है. सो मूव ए कॉमा सी, store the result at this 7502H, that is the storage of the carry, SHLD 7500H. 7500H is HL pair is stored in the 750. See, very important thing in the programming, first of all you should know all these instructions, and hope so you have understood the instruction. Okay, now, so this is the program, and this is the ORG 76001H is the what? 7601H means from this first hexadecimal number is in this. See, 7601H is 13H, 7602H is the 31H. So this is the MSB and this is the LSB. Okay. Similarly, first 8 bits of the second number is at 703 12H, and where the second number is 704H, output is 25, that is the LSB, and MSB is 41H. See, and 7502H is the 00H. Okay, so here the dat d command is used to get HL plus D. dat d का मतलब क्या है कि HL के कंटेंट्स D के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड द स्टोर द रिजल्ट इन द HL पेयर. तो फिर से यहाँ पे HL पेयर में रिजल्ट स्टोर है, तो L को हमें कहाँ पे स्टोर करना है, यानी लोअर बाइट स्टोर होगा L में, और अपर यानी MSB स्टोर होगा H में. MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी बड़ा नंबर H में स्टोर होगा और छोटा नंबर L में स्टोर होगा. तो फिर क्या किया, जैसे ही इधर हमारा dat d एग्जीक्यूट होगा, हमने कैरी को देखा, अगर कैरी जनरेट हो गया तो हमें डायरेक्टली HL पेयर को 7500 में स्टोर कर देना है. अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमें इंक्रीमेंट करना है C को. ओके, और C को अगर इंक्रीमेंट किया तो A में मूव करना है. फिर से रिजल्ट वहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, HL में रहेगा, फिर से 7502 में रहेगा, और स्टोर होने के बाद फिर से 7500 पे हमें एडिशन मिलेगा. तो 7500 पे LSB मिलेगा और 7501 पे हमें MSB मिलेगा. और वेयर एज द नेक्स्ट मेमोरी जो लोकेशन है 7502, उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज 00. फिर से यहाँ पे रीसेट के जगह पे आप HLT यूज कर सकते हो. ओके, तो ये है ये प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्रामिंग रहेगा, और आफ्टर रनिंग यू विल गेट सच टाइप ऑफ एनवायरमेंट. और यहाँ पे ये देखो, ये पूरा मेमोरी का व्यू है. यहाँ पे क्या है, पूरा मेमोरी का व्यू है. और सो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी हैव स्टडीड द एडिशन ऑफ 2 LP बिट एंड 16 बिट नंबर्स यूजिंग 8085. अब हम एक्चुअली रन करके देखेंगे कोड को. करेक्ट. ओके, अभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया है सिमुलेटर मेरा, तो मैं एक एक कोड आपके लिए लिख रहा हूँ. अब मैंने ओरिजिन प्रोग्राम में जो दिया है वो नहीं लेता हूँ, मैं डिफरेंट ओरिजिन लेता हूँ. लेट अस से 100H, यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट होगा. ओके, फिर मैं बोलता हूँ कि LXIH जो हमारा पहला नंबर है, LXIH कॉमा लेट अस से 700. अब जो प्रोग्राम में लिखा है वो नहीं ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल पर्पस, आप ये करके देखना. ओके, सो 7001H, ये सॉरी H थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है तो प्रॉपरली ध्यान दो आप. मूव A कॉमा M, मेमोरी में ले लिया मैंने उसको. अब मैं इंक्रीमेंट करूँगा क्योंकि मुझे दूसरा नंबर चाहिए जो मैंने INXH बोला है. ऐड M, क्या होगा ऐड M से, कंटेंट ऑफ मेमोरी इज एडेड इन द एक्यूमुलेटर with the accumulator, not added in the accumulator. content of A, that is accumulator plus content of memory, और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में. इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा. फिर से मैं INXH करता हूँ क्योंकि मुझे अब रिजल्ट स्टोर करना है, और फिर से मैं बोलता हूँ मूव, यानी जो रिजल्ट है वो मेमोरी में जाएगा, और यहाँ पे मैं RST1 भी लिख सकता हूँ, मैं HLT लिखता हूँ. ओके, तो ये हो गया आपका
लेकिन अब मुझे इनपुट भी देना पड़ेगा। इनपुट कैसे देंगे हम, एंटर करता हूँ यहाँ पे, और मैं फिर से यहाँ पे कहाँ से लिया था हमने एड्रेस देखना है यहाँ पे आपने 7001H। सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ORG, ओरिजिन है हमारा 7000H। सब हेक्साडेसिमल में चलता है, एवरीथिंग इज इन द हेक्साडेसिमल। ये रेड हो गया अब वो। और इसका यही एक तरीका है कि ये करेक्ट कैसे है प्रोग्रामिंग, सब कलरफुल दिखेगा आपको। अगर कलर नहीं है, ब्लैक दिख रहा है आपको कोई भी, तो वो गलत है, इट इज़ रॉन्ग। ओके, सो अब मैं यहाँ पे डेटाबेस देता हूँ। डेटाबेस क्या है हमारा, लेटस से DB। पहला नंबर मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल इसलिए लेटस से 12H। जो मैंने अब प्रोग्राम में लिखा है वही लेता हूँ, 12 + 13H। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। और यहाँ पे अगर आपको कमेंट लिखना है, कमेंट यानी ऐसा लाइन जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो ऐसा डबल स्लैश लेता हूँ और मैं लिखता हूँ नीचे ऐड 2 नंबर्स, और मैं इसको अब असेंबल करता हूँ। हो गया असेंबल, हो गया। ये देखो ये ओरिजिन, ओके ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से एडिटर में जाता हूँ। आई विल गो टू द एडिटर। ओके, इधर मैंने ORG नहीं लिखा, ORG लिखना पड़ेगा, ORG। फिर से असेंबल करता हूँ। ये देखो आ गया। अब पहले 00 था, बाय डिफॉल्ट वो 00 ले लेता है। ओके, लेकिन अगर आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि यस ओरिजिन शुड बी फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो ये एड्रेस। ये देखो ये निमोनिक्स। और सबसे बेहतरीन चीज़ इस सिमुलेटर की मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये है, ओके आई विल रन दिस फर्स्ट। ये देखो रन हो गया। और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रन करना पड़ेगा, रन एट अ टाइम या स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप किया तो आपने स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, रन एट अ सेम टाइम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हमारा रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, फिर से रिजल्ट आने वाला है हमारा 7। देखते हैं रिजल्ट कहाँ पे आया, तो ये मेमोरी देखते हैं। ओके 7003 पे ओके 700 पे पहला नंबर है, 700 पे दूसरा नंबर है, 7003 पे ओके ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 700 पे 12 आ गया, लेकिन वो जो डेटा है 7001 पे स्टार्ट हो रहा है। और 7002, वेयर इज 7002? ओके आई विल मेक चेंजेस। सो आई विल गो टू द एडिटर। सो आई विल गो टू, ओके 7001 बोलता हूँ मैं इसको, 7001। अब मैं करता हूँ असेंबल। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप किया, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो आप, रन एट द सेम टाइम भी कर सकते हो। असेंबल करता हूँ मैं फिर से, रन एट ऑल टाइम। ये आ गया देखो एडिशन। ये पहला नंबर था हमारा 12H, सब हेक्साडेसिमल है, फिर से बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज हेक्साडेसिमल। 12, दूसरा 13, ये देखो एडिशन आ गया। अब ये देखो टी स्टेट्स भी बताता है वो, ये देखो ये है पूरा आपका। सबसे बेहतरीन चीज़ इस सिमुलेटर की कि आप डायरेक्टली आपके रिजल्ट्स और मशीन साइकिल्स भी देख सकते हो। ये देखो आपकोड पेज, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, इट शुड बी मेमोरी राइट, लेकिन ठीक है उसने मेमोरी रीड दे दिया। और आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा पूरा। ये देखो पूरी पूरी स्टेज दी हुई, ये देखो कंप्लीटली इट इज़ गिवन हियर। अपकोड पेज, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल। ओके, और ये स्टेट से सारी, ये क्लॉक है आपका,
ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, वही यहाँ पे दिख रहा है। ये IO M बार है, S1 S0 है, रीड राइट एक्टिव लो सिग्नल्स। ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स। वैसे ही हम एडिशन ऑफ 2 16-bit नंबर कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको हमें सेव करना पड़ेगा रिजल्ट को। तो मैं क्या बोलूँगा, सो फाइल सेव हेक्स कोड, सेव एज असेंबली कोड। असेंबली कोड का क्या होता है, देखो मैं स्टोर करता हूँ ext1.asm होता है। अब आप डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हो, जो कुछ भी आप लोकेशन लेना चाहते हो सेव कर सकते हो। सेव निमोनिक्स हो गया सेव, ये देखो आ गया यहाँ पे ext1। ओके, सो और दूसरी चीज़ और एक, अब देखो व्यू में जाके मैं बोलता हूँ, ये ट्रेनर किट भी है। एक्चुअली ट्रेनर किट ऐसी होती है, हमारे जो लैब है कॉलेज में उसमें ट्रेनर किट ऐसी है एक्चुअली। तो फिर से हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, 100 था ना। ओके 1 मिनट, हमारा स्टार्टिंग एड्रेस 100 था। तो मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, रिसेट गो, और मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ 1000, और मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूट। ये आ गया, देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने चेंज देखा होगा, ये हो गया एग्जीक्यूट। तो ये ट्रेनर किट पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कॉलेज में भी आके कर सकते हो, लेकिन उसका अगर आपको फील लेना है यानी सिमुलेट करना है तो ये सिमुलेटर यहाँ पे है अवेलेबल। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम। अब दैट इज द एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स। सिमिलरली मैं अब यहाँ पे लोड सैंपल प्रोग्राम भी है, बहुत सारे प्रोग्राम है यहाँ पे। तो एडिशन ऑफ 2 16-bit नंबर का मैं डायरेक्टली यहाँ से सिमुलेट कर रहा हूँ अब। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, ये देखो पहला नंबर है। अब यहाँ से उन्होंने एड्रेस कहाँ से लिया, से C050H, यानी पहला नंबर जो है वो इधर स्टोर है, और दूसरा नंबर है C050 C051। इसको मैं असेंबल करता हूँ और मैं रन एट ऑल टाइम बोलता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है ये पूरा रन होने के लिए। ये आ गया, देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया C053/9B। ओके, तो ये है आपका 16 बाइट की एडिशन। 16 बाइट के एडिशन में अब मैं यहाँ से डायरेक्टली कोड रन किया है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया कोड वो रन करके देखना है आपको। तो डायरेक्टली यू कैन लोड दिस प्रोग्राम, लेकिन सारे के सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और ये जो प्रोग्राम दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे ये सारे BRAM जो टेक्स्ट बुक है माइक्रो प्रोसेसर का उसमें से लिए गए हैं। तो ये करेक्ट है सारे प्रोग्राम, यू कैन वर्क ऑन दिस। इसको भी आप सेव कर सकते हो, लेकिन मैं सेव नहीं करूँगा। DAD-D क्यों यूज़ किया है, क्योंकि देखो DAD-D दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 8085 का प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिमिटेशन नहीं बोलूँगा, प्रॉपर्टी ये है कि उसका एक्यूमुलेटर 8 बिट का ही है और आपको 16 बिट की एडिशन करना है। तो 16 बिट की एडिशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है DAD-D। इसमें क्या करना है हमें, पहला नंबर हम HL पेयर में लेंगे, दूसरा नंबर हम DE पेयर में लेंगे। ओके, पहला पेयर हम HL पेयर में लेंगे, दूसरा नंबर हम DE पेयर में लेंगे। और DAD-D जो इंस्ट्रक्शन है, इससे क्या होता है कि कंटेंट ऑफ DE पेयर इज एडेड इनटू कंटेंट ऑफ HL पेयर और रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द HL पेयर। if you read the explanation of this DAD-D command or this ALP, so you will get this topic. okay, तो ये एडिशन होने के बाद फिर एक एडिशन हो गया, INR इंक्रीमेंट किया C को, कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो, अगर कैरी जनरेट हो गया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हुआ तो उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। स्टोर द रिजल्ट एट दिस 7054H एंड यू हैव टू स्टॉप हियर। तो ये फिर से मैं अभी देखो मैं चेंज करके देखता हूँ, 7054 7056। अब मैं यहाँ पे
डेटाबेस में भी चेंज किया तो सारा आपको ये देखो 7054 पे 68H है, 7044 पे 41 है, आंसर भी दिए हैं यहाँ पे। तो फिर से मैं असेंबल करता हूँ और फिर से मैं रन एट ऑल टाइम बोलता हूँ। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो 7053। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कंप्लीट कोड फॉर यू हियर। पहला ही प्रैक्टिकल अच्छे से कर लो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है तो कंसेप्ट। मैं फाइल न्यू लेता हूँ, ओके, एग्जिट करता हूँ मैं। आई विल नॉट स्टोर दिस। ओके, ठीक है, 1 minute, आई विल स्टार्ट द न्यू सेशन फॉर दिस। सो 1 minute, आई विल एंड दिस। ओके, यहाँ पे मैंने कोड कंप्लीट लिख लिया है 16 बिट का, एडिशन ऑफ 2 16 बिट नंबर्स। तो मैं प्रोग्राम पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पे यहाँ डेटाबेस ये देखो, ये 16 बिट के दो नंबर है। ये हो गए पहले 8 बिट, ये दूसरे 8 बिट, ये नेक्स्ट नंबर के 8 बिट और दूसरे, और रिज़ल्ट आने वाला है 7500 पे। और मैं इसको रन करता हूँ, असेंबल करता हूँ। ओके, ये मिलेगा आपको। ऐसा मिलेगा आपको कंप्लीट। मशीन साइकिल पे आप क्लिक करोगे, टी स्टेट पे भी क्लिक करोगे तो ऐसा व्यू आपको भी दिखेगा। ये सारा आपके ऊपर है, आप कितना परफॉर्म करते हो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखो रिजल्ट कहाँ पे आ गया, 7500 पे। देखो 7500। ओके, आई विल रन दिस। रन नहीं किया था ना हमने, रन करना पड़ेगा। ये देखो ये रिजल्ट आ गया, ये 7500 पे रिजल्ट आ गया। ओके, so this completes our first experiment, that is addition of 2 8-bit numbers and 2 16-bit numbers. Next experiment है subtraction का. Okay, so I will end this.